Good morning. I am Assistant Professor Abhishek Kumar Vishwakarma of Yogoda Satsang Mahavidyalaya. Today I am going to discuss Android programming. This is my lecture 3rd. This lecture is for course BSc IT semester 3. So, in this session, I am going to discuss installation and uses of Eclipse with ADT plugin. Second is installing virtual machine, and third is configuring the installed tools. So let's start. First is installation of Eclipse, ADT and SDK. So there are various steps in Eclipse to configure all its plugins and software development kits, that is SDK. So these all steps are necessary because this makes possible to develop Android in Eclipse, and it needs to configure because we are going to make or develop programs in Eclipse for Android. So this is necessary to create an environment for Android development. So what are the steps involved in these installations? Let's start. So first is what? Java development kit. So we need what? JDK. Second is the Eclipse integrated development environment, that is IDE, Eclipse IDE. And third is the appropriate Android software development kit, that is SDK. Fourth one is, in addition to these steps, it will also be necessary to install the Eclipse Android Development Tool plugin. So what are the steps? First we need JDK, second we need Eclipse IDE, third we need Android software development kit, fourth we need an ADT plugin. So let's start from the beginning, that is JDK. So both in Eclipse IDE and Android SDK were developed using the Java programming language. So यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि JDK और Eclipse IDE जो SDK है Android का या Eclipse IDE है, ये किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से डेवलप किया गया है? These were developed using Java programming. Similarly, Android applications are also developed using Java. So the base language is what? That is Java. As a result, the Java development kit is the first component that must be installed. So that's why we need what? JDK. So the first software, the first things what we need to start Eclipse is JDK. And after that, Android development requires the installations of the standard edition of the Java Platform Development Kit version 6 or later. Means हम लोगों को JDK version 6 या उसके बाद के जितने भी versions है वो उनका requirement है. Java is provided in both JDK and JRE packages. For the purpose of Android development, the JDK must be installed. So Eclipse पे टास्क स्टार्ट करने के पहले हम लोगों को क्या चाहिए? JDK. JDK के साथ में JRE कंबाइंड होता है, पैकेज है, और ये आपको 6 वर्सन 6 से अबव चाहिए होगा. Next is Windows JDK installations. This is very simple.
हम लोग ऑलरेडी जावा में JDK को इंस्टॉलेशंस किए हैं, JDK का इंस्टॉलेशंस किए हैं, और ये इसका स्टेप्स बहुत सिंपल है। ये हम लोग Oracle कॉर्पोरेशन वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, इस लिंक से आप जावा JDK को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब सपोज assuming that a suitable JDK is not already installed on your system, मान लेते हैं कि आपके पहले से जो सिस्टम में है वो appropriate JDK नहीं है, तो डाउनलोड करना होगा नया लेटेस्ट JDK पैकेज और उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल करना होगा। Once downloaded, launch the installation executable and follow the on-screen instructions to complete the installation process। तो स्टार्टिंग में ही आपको सारा वो इंस्टॉलेशंस के समय स्टेप्स बताएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको टास्क परफॉर्म करना है। ये बहुत सिंपल है, हम लोग हमेशा करते रहे हैं JDK अगर इंस्टॉल, तो दिस इज वेरी सिंपल टू इंस्टॉल JDK इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। Windows JDK installation. For Windows systems, the JDK may be obtained from Oracle Corporation website using this. चलिए next. Installing the Eclipse IDE. अब JDK के बाद next जो हमें चाहिए that is Eclipse IDE। और Eclipse IDE हमें कहाँ से मिलेगा और इसको डाउनलोड कैसे करेंगे? ये क्या है, ये हम लोगों ने पहले सेशंस में देखा है कि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसको हम लोग डाउनलोड कहाँ से करेंगे? मैंने यहाँ पे एक लिंक दे रखा है, दैट इज www.eclipse.org/downloads। सेकेंड इज व्हाट? स्टार्ट द Eclipse इंस्टॉलर एक्जीक्यूटेबल। After downloading the Eclipse IDE software, we need to start execute it. After the Eclipse installer executable has finished downloading, it should be available in your download directory। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपके कहाँ पे दिखाता है? डाउनलोडेबल डायरेक्टरी पे। डाउनलोड डायरेक्टरी पे आपको ये शो करेगा इसके फाइल, exe फाइल, और वहां से फिर आप उसको इंस्टॉलेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं लाइक दिस। आप जब उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे आपके पास में ये विंडो आएगा, उसके बाद आपको परमिशन देना होता है, दैट इज रन पे आप क्लिक करेंगे और फिर ये इंस्टॉलेशंस स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या है इस पे? सेलेक्ट द पैकेज टू इंस्टॉल। द न्यू Eclipse इंस्टॉलर शोज द पैकेजेस अवेलेबल टू Eclipse यूजर्स। You can search for the package you want to install or scroll through the list। अब जब आप इंस्टॉलेशंस रन करेंगे तो आपको इस तरह का बहुत सारा ऑप्शंस उसमें दिखाएगा। ये Eclipse इंस्टॉलर है और ये बहुत सारा पैकेजेस आपको शो कर रहा है। अब इसमें कौन सा आप चूज करेंगे? तो सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन द Eclipse IDE फॉर जावा डेवलपर्स। तो आपको फर्स्ट जो टॉप मोस्ट पैकेज है दैट इज जावा डेवलपर, इसको आपको इंस्टॉल करना है, इसको सेलेक्ट करना है। और इसके बाद फिर क्या बताया कि सेलेक्ट योर इंस्टॉलेशंस फोल्डर। आपको कहाँ पे इंस्टॉल करना है, वो फोल्डर कौन सा होगा? पाथ, बेसिकली इट इज कॉल्ड पाथ। तो इंस्टॉलेशन फोल्डर कौन सा होगा वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा, बेसिकली सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या है? फिफ्थ, लॉन्च Eclipse। वंस द इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट यू कैन नाउ लॉन्च Eclipse। आपको Eclipse के साइट पे जाकर के Eclipse के इंस्टॉलर को डाउनलोड करना है, उसको रन करना है, उसमें पाथ स्पेसिफाई करना है और इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉलेशंस के बाद में आपको उसको लॉन्च करना है। जब लॉन्च हो जाएगा सक्सेसफुली तो आपके पास में Eclipse का एनवायरनमेंट आ जाएगा, Eclipse IDE आपके सिस्टम पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो आपको चाहिए दैट इज ADT। और ये ADT का रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि हम लोगों को एंड्रॉयड डेवलपमेंट उसमें
परफॉर्म करना है, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग परफॉर्म करना है। इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले जेडीके इंस्टॉल किया, फिर इक्लिप्स इंस्टॉल किया और अब एडीटी इंस्टॉल करेंगे। और इसके लिए जो स्टेप्स है वो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ। द एप्रोप्रिएट एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूल्स दैट इज एडीटी कैन बी एडेड टू द एग्जिस्टिंग इक्लिप्स। तो आपके पास में जो भी इक्लिप्स का वर्जन है उस पे आप एडीटी प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। इक्लिप्स एडिशन with which the additive plugin is compatible are as follows। तो बहुत सारा एडीटी आपको प्लगइन्स मिलेगा, कौन सा कंपैटिबल होगा किसके साथ, तो यहाँ पे दिया गया जैसे इक्लिप्स IDE फॉर जावा डेवलपर्स, इक्लिप्स क्लासिक वर्जन 3.5.1 और हायर, इक्लिप्स IDE फॉर जावा EE डेवलपर, इक्लिप्स फॉर मोबाइल डेवलपर्स। तो इन सब के लिए आप क्या कर सकते हैं, एडीटी प्लगइन यूज कर सकते हैं। मतलब इन सारे वर्जन्स के साथ, इन सारे एडिशंस के साथ एडीटी प्लगइन को यूज किया जा सकता है। तो ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूल्स है। तो इसमें नेम में ही डिस्क्राइब किया है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल जो टूल्स हैं वो ये प्रोवाइड करेगा। और ये क्या है, ये सब ओपन सोर्स है, गूगल इसको प्रोवाइड कर रहा होता है। Adding the ADT plugin to an existing Eclipse integration। अब स्टेप्स क्या है इसके अंदर में, तो ADT plugin for Eclipse added a range of Android specific features। क्या क्या है, to install this plugin and launch Eclipse। Select, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, Eclipse को लॉन्च करना है। उसके बाद उस इक्लिप्स IDE के अंदर हेल्प मेनू के अंदर इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर ऑप्शन को सेलेक्ट करना। तो हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया इक्लिप्स, उसके अंदर में हेल्प मेनू पे गए और इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर ऑप्शन को क्लिक किए। उसके बाद आपके पास में स्क्रीन पे दिखाया जा रहा विंडो इस तरह का आएगा। ये विंडो आपके सामने में अपीयर हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको क्लिक ऑन द ऐड बटन। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऐड बटन है इस जगह पे। कहाँ पे है, आप इस जगह पे देख रहे होंगे, यहाँ इस पोजीशन पे ऐड बटन है। इस ऐड बटन को आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको क्लिक करने के बाद उसमें ऑप्शन आएगा नेम एंटर करने का और HTTP मीन्स लिंक प्रोवाइड करने का, लोकेशन कहाँ से आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं। तो जब आप ऐड में क्लिक करेंगे उसके बाद आप नेम इंटर करेंगे। नेम एडीटी प्लगइन इन जनरल लिख रहे होते हैं, आप एडीटी भी लिख सकते हैं, अदर्स भी यूज कर सकते हैं, बट एक स्पेसिफाइड नेम होता है जैसे, जिससे बाद में आपको इन फ्यूचर फाइंड आउट करने में इजी हो। तो एडीटी प्लगइन हम लोग यूज करना चाह रहे हैं, इसलिए नेम जो है हम लोग एडीटी प्लगइन लिखेंगे। उसके बाद लोकेशन फील्ड पे हम लोगों ने ये जो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है लिंक, इसी लिंक को आपको भी एंटर करना है। उसके बाद क्लिक ऑन द ओके बटन, और ये एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ये ऐड पे क्लिक किए पहले, उसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे नेम पे स्पेसिफाई किए एडीटी प्लगइन और उसके बाद लोकेशन प्रोवाइड किए, ये आपका लोकेशन है, ये पूरा स्पेसिफाई कर दिया गया इस जगह पे। और उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे अगेन ऐड पे क्लिक करेंगे। इस ऐड पे क्लिक करने के बाद आपका ये विंडो आपके पास में आएगा और इस विंडो पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जब आपका इंटरनेट कनेक्टेड होगा तो ये ऑटोमेटिक उस साइट से लिंक्ड हो जाएगा। मींस इंटरनेट कनेक्टेड होगा, मींस आपको इक्लिप्स इंस्टॉलेशंस के लिए, एडिटिव प्लगइन के लिए, एसडीके के लिए इंटरनेट का रिक्वायरमेंट है, आप उसके बिना नहीं कर सकते।
आपके पास या तो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होने चाहिए, एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होने चाहिए, या फिर आप ऑनलाइन इसको डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो अभी हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं दैट इज फॉर ऑनलाइन। हम लोग ऑनलाइन सारा चीज सर्च कर रहे हैं और ऑनलाइन ही इंस्टॉलेशन प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐड में क्लिक करने के बाद इस तरह का विंडो आपके पास में आएगा और यहाँ पे आपको दो चीज दिख रहा होगा, ये दो चीज, डेवलपमेंट टूल्स एंड हैंडीकैप प्लगइन्स। तो जब आप अब ऑप्शंस क्या है, जब आपने ऐड पे क्लिक कर दिया तो बता रहे सेलेक्ट द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू द डेवलपर टूल्स एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। तो आपको इस चेक बॉक्स पे डेवलपर टूल्स के जो चेक बॉक्स है इस पे आपको टिक करना है और ये टिक के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद किस तरह का इंस्टॉलेशन हो रहा है, क्या क्या उसके अंदर में पैकेजेस हैं वो आएंगे और फिर आपको नेक्स्ट करते जाना है। जैसे ऐसे इंस्ट्रक्शंस आएंगे वैसे आपको नेक्स्ट परफॉर्म करना है। वंस अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन टू प्रोसीड ऑन द सब्सिक्वेंट लाइसेंस पेज। तो आपको इसके लाइसेंस को एग्री करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे लाइसेंस है, इस लाइसेंस को आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे है, यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद में फिर फिनिश। तो इस तरह के इसके प्रोसेस है और फिनिश करने के बाद में वार्निंग देता है कि इंस्टॉलेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, ओके करना है। फिर आप एडीटी को इंस्टॉल कर पाएंगे। एडीटी का सारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको रीस्टार्ट करना होता है, आपको इक्लिप्स को फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, जेडीके इंस्टॉलेशन, इक्लिप्स आईडी इंस्टॉलेशन एंड देन आफ्टर एडीटी प्लगइन। अब नेक्स्ट जो टूल्स है, नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज इंस्टॉलेशन ऑफ एंड्रॉयड एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो फर्स्ट स्टेप इसके लिए क्या है, क्या करना है, क्लिक ऑन विंडोज मेन्यू। विंडोज मेन्यू कहाँ पे, इक्लिप्स के अंदर, इक्लिप्स आईडी के अंदर विंडोज मेन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मैंने दिखा रखा, मैंने सारा मेन्यूज और जितने भी स्टेप्स आते हैं करीब करीब सबको कवर करने की कोशिश की है कि ग्राफिकली आपको शो हो जाए कि इसी तरह का वहां पर भी अवेलेबल होगा। और जैसे इन फ्यूचर वर्जन चेंज हो गए तो उसके स्टाइल या फॉर्मेट हो सकता है चेंज हो, बट मोस्ट बेसिक जो स्टेप्स हैं वो यही होंगे। तो विंडोज मेन्यू के अंदर हम लोगों को क्या सेलेक्ट करना है, एंड्रॉयड एसडीके मैनेजर। इस जगह पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑप्शन है दैट इज एंड्रॉयड एसडीके मैनेजर। इसको सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका प्रोग्रेशन इंफॉर्मेशन आएगा, एक विंडो आएगा, वो दिखाएगा कि एसडीके स्टार्ट हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। और उसके कंप्लीशन के बाद फिर आपके पास में एसडीके मैनेजर का विंडो खुल जाएगा और इस विंडो के अंदर जितने भी अवेलेबल एपीआईज हैं वो सारा यहाँ पे शो करता है। साथ में जो एक्स्ट्रा अवेलेबल टूल्स हैं एसडीके के लिए वो भी यहाँ पर शो करता है। तो इनमें हम लोगों को डिसाइड करना है कि कौन से एंड्रॉयड वर्जन के साथ, कौन से एंड्रॉयड एपीआई के साथ टास्क परफॉर्म करना है और उसके साथ में किस तरह का एक्स्ट्रा टास्क, एक्स्ट्रा टूल्स का रिक्वायरमेंट है जो आपके एंड्रॉयड डेवलपमेंट को हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार इंस्टॉलेशंस के बाद में सेकेंड टाइम आप इसको रीइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप इसको जब चाहे
अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस तरह का डेवलपमेंट करना है उसके अकॉर्डिंग APIs को सिलेक्ट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और बाद में डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद रीइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अपडेट्स भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो SDK मैनेजर का हम लोगों को बार बार जरूरत पड़ेगा, जैसा रिक्वायरमेंट होगा डेवलपमेंट का उसके अकॉर्डिंगली APIs को इंस्टॉल करते हैं, एक्स्ट्रा टूल्स जो अवेलेबल है उसको इंस्टॉल करते हैं और अपने प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं। अब इसके अंदर में कुछ बातें हैं, इसको समझते हैं हम लोग। तो इट इज proposed to choose components for download via the internet. It is obligatory to download the contents of the tools folder that has not been downloaded yet, also in the extra folder. Tick Android support library items if it is there. तो अब Android support library की जगह एंड्रॉयड सपोर्ट रिपोजिटरी भी लिखा होता है। तो आप एंड्रॉयड सपोर्ट लाइब्रेरी एक्स्ट्रा से जाकर के डाउनलोड करेंगे या एंड्रॉयड सपोर्ट रिपोजिटरी को भी डाउनलोड करेंगे। तो टूल्स में जाकर के आपको एंड्रॉयड SDK टूल्स और एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म ये तो नेसेसरी है, इसको डाउनलोड करना ही है। साथ में जो APIs आपको चाहिए उसको आपको डाउनलोड करना है, उसके SDK प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करना है, उसके जो गूगल APIs हैं उसको डाउनलोड करना होगा और आप उसको डाउनलोड करके फिर एक्स्ट्रा के अंदर में जो ऑप्शंस होगा लाइक एंड्रॉयड सपोर्ट रिपोजिटरी या लाइब्रेरी या गूगल से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, USB का ऑप्शंस होगा, वो सारा चीज को आपको डाउनलोड करना होगा। अगर इंटरनेट का इश्यूज नहीं है, स्पीड का इश्यूज नहीं है, स्पेस का इश्यूज नहीं है तो आप सारा को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स अपॉन अस कि हम लोगों को किस तरह का डेवलपमेंट करना है, किस तरह के APIs इंस्टॉल करना है। तो जनरली अभी एंड्रॉयड 10 के साथ काम कर रहे हैं हम लोग, तो एंड्रॉयड 10 के सारे API को हम लोग इंस्टॉल करेंगे और एक्स्ट्रा एंड्रॉयड सपोर्ट लाइब्रेरी या रिपोजिटरी जो होंगे उसको इंस्टॉल करेंगे। साथ में जिस भी API के या वर्जन को आप चूज कर रहे हैं उसमें होता है कि SDK प्लेटफॉर्म और ARM EABI वर्जन 7A सिस्टम इमेज, इस तरह के जो ऑप्शंस है ये एमुलेटर के लिए है, इसको भी आपको नेसेसरीली इंस्टॉल करना होगा। तो SDK प्लेटफॉर्म हर एक API का, जिस भी API को आप चाह रहे हैं उसके SDK प्लेटफॉर्म और ARM EABI एमुलेटर के लिए जो है उसको भी आपको इंस्टॉल करना होगा। देन आफ्टर select Google APIs by Google Incorporation. This is needed if you would like to work with Google applications, maps, navigation, इस तरह के काम करना है तो उसके लिए Google APIs है। तो मैंने पहले ही बताया कि रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोग इससे पैकेजेस को जो वर्जन्स है उनको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इफ यू डोंट केयर अबाउट द ट्रैफिक, ठीक एवरीथिंग, आपके पास में इंटरनेट स्पीड अच्छी है, स्पेस काफी है, तो आप सारा चीज को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि करीब जो हर एक जो प्लेटफॉर्म आप इंस्टॉल करेंगे उसका वेट अप टू 150 MB होगा। तो इस पे अंदाज आप लगा सकते हैं कि आप कितने चीजों को टिक कर रहे हैं। 150 इंटू 150 इंटू 150, उसके अकॉर्डिंगली उतना स्पेस आपको एक्वायर करेंगे। तो ये स्टेप्स किस चीज का है? एंड्रॉयड SDK का। हम लोगों ने एंड्रॉयड SDK इंस्टॉल करने के लिए क्या किया? इक्लिप्स को ऑन किया, विंडोज मेनू पे गए, उसके अंदर में एंड्रॉयड SDK मैनेजर को क्लिक किए, प्रोग्रेशन विंडो आया, प्रोग्रेशन विंडोज के बाद में आपके पास एंड्रॉयड SDK मैनेजर का फाइनल विंडो आ जाता है। इसके अंदर डिफरेंट APIs दिखाएंगे, टूल्स दिखाएंगे, एक्स्ट्रा दिखाएंगे, उसमें आपको टिक करना है और जो भी रिक्वायरमेंट है उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन पे जैसे आप क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो आपसे फिर से वो लाइसेंस का एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने के लिए ऑप्शन आता है, उसको आपको
एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट ऑल कर सकते हैं, जिसपे सारा APIs का एक ही बार एक्सेप्ट हो जाएगा। ये स्टेप्स बहुत सिंपल हैं, जो हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ इंस्टॉलेशंस के दौरान देखते आए हैं कि इस तरह के स्टेप्स आते हैं। इसमें हम लोगों को ये बेसिकली पढ़ना था कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसके सारे स्टेप्स को आपको देखना है, और इनफैक्ट एग्जामिनेशन के व्यू से भी अगर स्टेप्स आते हैं तो उसको आपको लिखना होगा। अब ये इंस्टॉलेशंस के बाद फाइनली क्या करना है, ये इंस्टॉलेशन के बाद फाइनली आपको रीस्टार्ट करना है। ADT के समय भी हम लोगों ने रीस्टार्ट किया था, SDK के इंस्टॉलेशन के बाद भी रीस्टार्ट करना होगा, और रीस्टार्ट के बाद आपका इक्लिप्स तैयार हो जाएगा, और उस इक्लिप्स पे हम लोग फिर फर्दर डेवलपमेंट कर सकेंगे। साथ में एक चीज यहाँ पर है, जब आप Android SDK इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको प्रेफरेंस सेट करना होता है, मीन्स लोकेशन बताना होता है Eclipse IDE को कि हमारा Android SDK फोल्डर कहाँ है, कहाँ कौन से पाथ में आपने इंस्टॉल किया है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए फिर से विंडोज पे जाना होगा और प्रेफरेंस पे क्लिक करना होगा, और जब आप प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में ये विंडो आएगा, और इस विंडो पे आपको क्या डिमांड कर रहा है वहां पे SDK लोकेशन। ये विंडो तब आएगा जब आप यहाँ पर एंड्रॉयड पे टिक करेंगे, एंड्रॉयड को जैसे चूज करेंगे ये विंडो आपके पास में आएगा, और इस जगह पे आपको क्या करना है, इस जगह पे आपको SDK लोकेशन प्रोवाइड करना है। आपको वो लोकेशन प्रोवाइड करना है जहां पे आपने SDK को इंस्टॉल किया। जनरली जो डायरेक्टरीज है वो Android SDK विंडोज इस तरह के फॉर्म में रहता है, Android SDK भी लिखा रहता है, और जो नॉर्मल पाथ है जो इन जनरल डायरेक्टली जो इंस्टॉल होता है, इन डिफॉल्ट कह सकते हैं, वो आपको C ड्राइव में यूजर डायरेक्टरी के अंदर, ऐप डेटा के अंदर, लोकल डायरेक्टरी के अंदर Android SDK मिलेगा, और ऐप डेटा जो है वो यूजर फोल्डर के अंदर हिडन फॉर्म में होता है। तो आप जब भी C ड्राइव में जाएंगे, यूजर फोल्डर के अंदर जाएंगे, आपको हिडन फोल्डर्स को शो कराना होगा, और वो शो होने के बाद उसमें आपको मिलेगा ऐप डेटा फोल्डर। ऐप डेटा फोल्डर को डबल क्लिक करेंगे, उसके अंदर जाएंगे, और उस वहां पे आपको Android SDK मिलेगा, और फिर उस पे आप पाथ प्रोवाइड कर देते हैं। पाथ प्रोवाइड करने के बाद आप अप्लाई करेंगे और फाइनली ओके। ये तो बात हो गई JDK, Eclipse IDE, ADT प्लगइन और Android SDK मैनेजर को इंस्टॉल करने का। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, AVD, इसको शॉर्टकट में AVD भी बोलते हैं। ये क्या है, ये स्मार्टफोन एमुलेटर है। Eclipse कैन इंस्टॉल एंड लॉन्च आवर एप्लीकेशंस। तो जो एप्लीकेशन हम लोग डिजाइन करेंगे Eclipse के अंदर में, उनको देखने के लिए, उनको प्रैक्टिकली कैसे मोबाइल पे रन करेगा, वो सारा उसका अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग, सारा स्टेप्स को देखने के लिए हम लोगों को पास में एक एमुलेटर है, स्मार्टफोन एमुलेटर होगा, दैट इज AVD, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। उसके अंदर आप ये सारे एप्लीकेशंस के टास्क को परफॉर्म करता हुआ देखेंगे और उसको यूज करेंगे। फिर AVD कॉन्फ़िगरेशन के बाद को करने के लिए हम लोगों को फिर से क्या करना है, विंडोज मेनू पे जाना है, एंड्रॉयड SDK के पास में आपको क्या मिलेगा, AVD मैनेजर। AVD मैनेजर पे आपको क्लिक करना है, और जब आप AVD मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में इस तरह का विंडो आ जाएगा, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। इस विंडो के अंदर में आप देख रहे होंगे क्रिएट
बटन है, स्टार्ट बटन है, एडिट है, रिपेयर, डिलीट, डिटेल, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए। तो हम लोगों को यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में फिर से एक नया विंडो आएगा। वो किस लिए होगा? वो एवीडी क्रिएशन के लिए होगा। आपको एवीडी का नाम देना है। इस एवीडी का नाम आप अपने कुछ भी नाम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना डिवाइस क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें माई एवीडी या पर्टिकुलर किसी मोबाइल मॉडल का नेम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद डिवाइस से चूज करना होता है। मीन्स जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सारा चीज आपको चूज करना होगा कि टारगेट कौन से एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे आप उसको रन करना चाह रहे हैं। सीपीयू एबीआई किस तरह का होगा, कीबोर्ड हो देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं, कीबोर्ड हार्डवेयर कीबोर्ड प्रेजेंट होना चाहिए वहां पर जिसके थ्रू आप उसको रन करना चाहते हैं। स्क्रीन का साइज क्या होगा, स्क्रीन का स्टाइल क्या होगा, बैक कैमरा फ्रंट कैमरा यूज करना चाहते हैं या नहीं चाहते, रैम कितने होंगे। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस है और इन ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट करके क्रिएट या ओके पे क्लिक करना होता है। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका इस नाम से एवीडी क्रिएट हो जाएगा। इस एवीडी को कब यूज करेंगे? जब हम लोग प्रोग्राम क्रिएट कर लेंगे। जब प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, उसको रन करेंगे तो वो हमारा एमुलेटर के अंदर रन करेगा और वो आपको वहां पे शो होगा कि इस तरह से ये टास्क परफॉर्म कर रहा है। सेम वैसे ही एमुलेटर होते हैं जैसे हम लोगों का मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन ही वहां पे आपको दिख रहा होता है। उसमें भी ऑन ऑफ बटन्स होते हैं, उसमें भी बैक होते हैं, होम के होते हैं। इस तरह के सारे फैसिलिटी, सारे बटन्स, वॉल्यूम अप डाउन, सारे बटन्स होते हैं जैसे एक नॉर्मल मोबाइल पे होता है और उसको आप कैसे यूज करना है वहां पे आपको शो करता है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने इंस्टॉलेशन प्रोसेस को देखा है कि किस तरह से एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग इक्लिप्स के अंदर करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। तो जेडीके चाहिए, इक्लिप्स आईडीई चाहिए, एडीटी चाहिए, एसडीके चाहिए और एवीडी चाहिए। और इन सारे के लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है हम लोगों ने इस सेशन पे डिस्कस किया। इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा और इनफैक्ट प्रॉब्लम्स आएंगे ही, क्योंकि इंस्टॉलेशंस में बहुत सारा इंटरनेट इश्यूज या अदर वे से, या फिर आपने पाथ अलग डिफरेंट दे दिया तो अलग अलग तरीका का इसमें एरर्स जनरेट होते हैं। उनसे घबराना नहीं है, टेंशन नहीं है। वो स्टेप्स, उस एरर को हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। उस हर एक एरर को हम लोग चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली जब ये सारे स्टेप्स कंप्लीट होंगे सक्सेसफुली, तभी हम लोग इसमें डेवलपमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट किया था एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग को और अभी तक हम लोग इंस्टॉलेशन पार्ट में आए हैं। इसके बाद जो सेशन है, इसके बाद जो टर्म्स है सिलेबस में, दैट इज उप्स। और उप्स हम लोगों ने जावा पे पढ़ा है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनका तरीका क्या है, किस तरह से यूज करना होता है, इनमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, स्पेसिफायर्स क्या है, किन किन तरह का इनहेरिटेंस होता है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सारे बातों को हम लोगों ने अपने पहले सेमेस्टर्स में पढ़े हैं। तो उनको बार बार रिपीट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है, बट हम लोग इसके साथ जाएंगे, एंड्रॉयड के साथ जाएंगे और जहां रिक्वायरमेंट पड़ेगा उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।